हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ और मॉडल ऑक्सिलरीज़ के बीच डिफरेंस की बात की थी एंड टुडे विल कंसंट्रेट ऑन मेजर मॉडल ऑक्सिलरीज़. फर्स्ट मॉडल ऑक्सिलरीज़ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज विल एंड शैल. आप सभी ने स्कूल में फ्यूचर टेंस के अंदर विल और शैल का यूज़ पढ़ा होगा, बट एज सच अगर हम ग्रामर की बात करें तो देयर इज़ नथिंग लाइक फ्यूचर टेंस. देयर इज़ पास्ट एंड नॉन पास्ट और यू कैन से प्रेजेंट फॉर्म. फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के कुछ तरीके होते हैं और उनमें से एक तरीका है शैल और विल का. मॉडल विल एज अ मॉडल expresses futurity. Will helps in the formation of future tense, normally with second or third person pronoun. Like we can say, my brother will leave for Bombay tomorrow. The sun will rise at 6 tomorrow. Will also expresses willingness. I will help you. At the same time, will you plus please is used to express a request or an invitation. It is a more polite form than please plus only verb. Will you please switch on the fan? Will you please close the door? Will you have a cup of tea, please? But if we use will you without please, then it will be considered as a command. Will you close the door? Close the gate. Will you? But if you don't use even will with the verb close, then it would be if you use close the gate. If you only say close the gate, then it would be a rude command. But will you close the gate? It would be a polite command. Sit down, it's a harsh command. But if you say will you please sit down or will you sit down, then it's a polite command. Will is also used to express intention or promise. How? You say I will come tomorrow. It means you are making a promise. I will certainly help you. Will also expresses determination. Determination like we will root out COVID-19 out of world. So it's a determination. Will is also used as it expresses prediction, like he will never be able to tell a lie. किसी पे हमें बहुत विश्वास है कि वो झूठ नहीं कह सकता, तो हम कहेंगे कि कुछ भी हो जाए वो झूठ नहीं बोलेगा, तो ये हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं. देन विल विथ फर्स्ट पर्सन इन question form is also used. Will you be or will I be all right tomorrow? So there are many uses of will, like if we use will plus have plus first form of verb, then it expresses a deduction or assumption, like he will have heard the news. उसने शायद न्यूज़ सुन ली होगी, तो हम एज्यूम कर रहे हैं. ही विल बी एट द क्लब ऑन ट्यूसडे इवनिंग. किसी के बारे में हम कह रहे हैं कि वो ट्यूसडे इवनिंग को क्लब में होगा. दे विल हैव प्लेंटी ऑफ फन टुमारो. कल बहुत मज़ा आएगा, उन्हें बहुत आनंद उठाएंगे. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विल वर्क्स एज अ मॉडल ऑक्सिलरी इन दिस फैशन. देन कम्स another model, can. Can, as you have already noticed or you are familiar with, can expresses ability.
Ability can be temporary as well as permanent. Like when you say, I can speak 4 languages, I can speak English, it means you are pointing towards your permanent ability. Or if you say, the doctor cannot see you now, he can see you only in the evening. डॉक्टर आपसे अभी नहीं मिल सकता, आप डॉक्टर से शाम को ही मिल सकते हैं. तो दैट इज टेम्परेरी इनएबिलिटी और टेम्परेरी एबिलिटी. कैन इज ऑल्सो यूज्ड टू शो कैपेसिटी ऑफ समथिंग. लाइक दिस टैंकर कैन होल्ड 30,000 gallons of oil. Or we can say can is also used to express power. The district collector can ban the sale of this drug. And the negative capability, negative power is shown into can't. His eyesight is poor, he can't read in this light. He is lame, he cannot run fast. Can and able to are quite usual. Like we can say she can run fast, means she is able to run fast. Another use of can is that it is used for giving and taking of permission. You can go, you cannot go. Can I attend the meeting please? Can I go? So you are taking permission and you are giving permission. Next is can't help. Can't help is an idiom which means can't avoid. Like we can say people or children can't help laughing on seeing a joker. जोकर को देखकर बच्चे हंसे बिना नहीं रह सकते. तो कांट हेल्प इज एन इडियम. नेक्स्ट कम्स शेल. लाइक विल, शेल ऑल्सो एक्सप्रेसेस फ्यूचरिटी. एंड शेल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर स्पेशली व्हेन द सब्जेक्ट इज आई और वी. I shall leave for Jaipur tomorrow or this evening. Or we can say we shall leave for Bombay or we shall go to market tomorrow. Shall also expresses command or threat. Like they shall suffer for what they have done. जो कुछ उन्होंने किया है उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा. And shall when used in question form with first person I or we, then shall expresses offer or suggestion. Like shall we go there? Shall I make a cup of tea? Shall we go for a picnic? तो ये तरीके हैं जिससे हम कुछ ऑफ़र करते हैं, कोई सजेशन देते हैं, कोई सुझाव देते हैं या हम किसी तरह का कोई प्रस्ताव किसी को देते हैं. इसके बाद आता है मे. मे एज यू नो इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन गिविंग और टेकिंग ऑफ परमिशन. स्कूल्स में जब भी आप बाहर से आते थे आप टीचर को क्या कहते थे? मे आई कम इन, मे आई गो. इसी तरह से हम बोलते थे. तो मे का मेन यूज़ जो है वो परमिशन देने और लेने के लिए होता है. इट इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर परमिशन. बट मे कैन ऑल दिस एक्सप्रेस परमिशन. But the permission which is used by might is more polite. हम ये भी कह सकते हैं can I use your pen? May I use your pen?
कैन, मे, माइट, ऑल दीज आर यूज फॉर सीकिंग परमिशन। और ऐसे में पॉजिटिव रेस्पॉन्स यस यू मे, यस यू कैन, नो यू कैन नॉट, नो यू मे एन, इस तरह से हम इसको नेगेटिव में भी यूज़ करते हैं। पर ऐसे में डिफरेंस क्या है? मे नॉट जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मल है और कांट जो है वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है। इसके अलावा मे क्या एक्सप्रेस करता है? पॉसिबिलिटी, संभावना, और ये संभावना माइट और कैन के द्वारा भी व्यक्त की जाती है। इट मे रेन टुनाइट, बादल लग रहे हैं आसमान में तो इट मे रेन टुनाइट। और अगर ज़्यादा संभावना नहीं दिख रही है तो हम ये भी कह सकते हैं इट माइट रेन टुनाइट, बादल तो नहीं है पर क्या पता हो जाए। और इट कैन रेन टुनाइट, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम मे का यूज़ जो करते हैं वो विश के लिए भी करते हैं। जब हम किसी के लिए कोई कामना करते हैं, विश करते हैं, तब हम मे का यूज़ करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे शी हैव गुड हेल्थ। तो ये हम मे का यूज़ इस प्रकार से भी करते हैं। इसके अलावा मे का जो एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है वो होता है टू एक्सप्रेस पर्पस और रिजल्ट। किसी चीज़ का परिणाम या किसी चीज़ का उद्देश्य बताने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, मेहनत करो उसका परिणाम क्या होगा? ताकि तुम पास हो जाओ। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं, हमारा खाने का उद्देश्य क्या है? ताकि हम जिंदा रह सकें। इसके अलावा जैसे अगर हम मे के साथ हैव का यूज़ करते हैं, ही मे हैव कॉट द बस, कि जहाँ हमारे मन में कोई संशय का भाव हो, डाउट हो, अनिश्चितता हो, तो हम इसका यूज़ करते हैं कि शायद उसने बस पकड़ ली होगी। ही मे हैव कॉट द बस। या कई बार किसी तरह की संभावना को व्यक्त करने के लिए, आवश्यकता, भविष्य की आवश्यकता को बताने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। लाइक द हॉल इज़ फुल, वी मे हैव टू स्टैंड, कि हॉल तो पूरा भरा हुआ है, शायद हमें खड़ा रहना पड़े। ही इज़ ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, ही मे हैव टू पे अ फाइन, वो बिना टिकट यात्रा कर रहा है, हो सकता है उसे उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ जाए। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कैसे हम विल, शैल, कैन और मे का मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आगे के जो मॉडल्स हैं, आई मीन मस्ट और मे, कैन, विल, शैल के पास्ट टेंस फॉर्म, और जिन्हें हम सेमी मॉडल्स के रूप में मानते हैं, नीड, ऑट, डेयर, इनका यूज़, इन सबको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।